that I tried my effort to just be able to explain what all I have been able to gather from the experiences of other people and from many people who have been working on this big note and on this big sculpture and a literature which become a part of the religious sect of Hindus, but not just restricted towards that. We are talking about this part of Ramayana not from the point of view of a particular religious belief, but we have a many excerpts from this which we can learn in our daily lives to make it better and to have a better understanding of the philosophy of life. So without wasting some more time, we just start with the sculpture, the literature of Sundarkand, and the name suggests, and as the name goes, it always been imbibed with the name called Sundar. So the Kand which is Sundar is called as Sundarkand, but there are many explanations to this, many versions of this which have been scripted. So far as I just request everyone, is everyone will be comfortable in English or should I go bilingual? I hope some of you might be able to guess through in Hindi, or some of you might be able to guess in English. But I'll try my best to be bilingual. So I'll go with Hindi also, so that because it would be very easy to connect with the language in Hindi, because some things are need to be communicated in that manner only. Even if some people are from the English background, they don't understand Hindi. They might ask me, or I'll try my best to translate for them in English. But most of our discussions and most of my interaction will be bilingual, because it will be easier for all to understand and easier for me to make you convey the things. Someone has raised the hand. You can just write it in the chat box. Someone if want to mention something. So I'll continue now onwards. Since I got a many thumbs up on Hindi, so I'll continue my presentation. And now I'll start in a bilingual language so that we can connect better with each other. I don't know how many of you have heard about Sundarkand, but yes, at least we have once in a lifetime heard in some places, in some temples, and many parts of our life, that there is a part called Sundarkand in Ramayana. So starting, so just starting with English, then we'll move on to the bilingual. So I'll just share my screen. I hope my screen will now be visible to everyone. I'll just sharing in the 5 seconds. Yes. So is my screen visible to all? Yes, sir. Thank you, Puneet sir. Thank you so much. And my voice is quite audible to everyone also. So now we Yeah, can yeah. continue. Good to go. Thank you, sir. So far as Sundarkand is concerned. So what is Sundarkand? Sundarkand is all about, it's an inspiring journey. We later get into the meaning of Sundarkand, why it is called Sundar, what are the reasons behind this. Not just one reason, there are many reasons why it is called Sundarkand. But first and foremost, why Sundarkand and what it is all about? What is the essence of it? So if I say what is Sundarkand, so Sundarkand is just, it's an inspiring journey. It's a journey about never giving up even in the darkest moments of your life, how you can maintain the perseverance, how you can maintain the resilience, and then how you came up from that. So Sundarkand is all about, in essence and initially, if we go on a very surface level, if you want to understand. So on a surface level, in Sundarkand is all about never giving up. And how in even the darkest moments of your life, how you learn to cope up with the situations and to come up out with them. So there is an essence in Sundarkand in Hindi. I would just like to read now कि पूर्ण शांति की कामना ही अशांति है. अब आप इसका डीप अंडरस्टैंडिंग समझिएगा कि कितना डीप जा सकता है सुंदरकांड और कितना सर्विस लेवल पे भी आ सकता है. सो सरफेस लेवल पर क्या है, एक सुंदरकांड है, पर इसका डीप एसेंस क्या है, जब मैं आपको लास्ट सेशन लूंगा तब आपको इसका एसेंस डीप में समझा दूंगा. और यही एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर मेरा काम है कि मैं कितना ही आसान तरीके से किसी बात को समझाया जा सके ताकि उसको हम अपने जीवन में अवतरित कर सकें. तो पूर्ण शांति की कामना ही अशांति है, इच्छा न रहे तो पूर्ण शांति है. तो ये बहुत एक डीप मीनिंग है. बट सुंदरकांड की अगर हम बात करें तो सुंदरकांड इज ऑल अबाउट हनुमान्स जर्नी, and there are spiritual insights out of those journey.
So there are two versions of Sundarkand. One is from Valmiki Ramayana, another one is from Goswami Tulsidas Ji's Ramcharitmanas. Essence remains the same, but first we need to understand what is the meaning of itihasa. Itihas means iti ha asi. That means that is how it happened. So it is not just limited to what has happened, but it is giving you the insights of life, how to move up, how to cope up, and how to deal with the daily struggles of life without being getting deprived. So first of all, whenever I say Sundarkand and whenever I talk about this, there are many people who know about that there are two Kands. One is Kishkinda Kand and another one was Lanka Kand. Kishkinda Kand Sundarkand से पहले का है और लंका कांड सुंदरकांड के बाद का है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको बहुत डीप एसेंस में मैं आपको समझाना चाहूंगा। हम सब लोग यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं, हम सब फैकल्टीज हैं, तो हम उस तल पर जाके इन चीजों को समझ सकते हैं। तो इस बात को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें, मैं इसमें बाद में आऊंगा कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है और सुंदरकांड के क्या संकेत हैं, क्या इंडिकेशंस हैं। पर सबसे पहला जो इंडिकेशन है जहां से ये शुरुआत होती है, तो सुंदरकांड की शुरुआत है जो कि किष्किंधा कांड के पश्चात यानी किष्किंधा कांड के बाद और लंका कांड से पूर्व। अब किष्किंधा कांड में और लंका कांड में विडंबना क्या है? मेरे ख्याल में जो लोग हिंदी समझते हैं वो विडंबना का अर्थ समझते होंगे। किष्किंधा कांड जिन लोगों ने रामायण के बारे में थोड़ा बहुत भी समझा है या जाना है, वो इसको थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम की मुलाकात सुग्रीव, बाली और हनुमान जी से होती है। और जब वो सुग्रीव से मिलते हैं और सुग्रीव से वार्तालाप करते हैं, तो सुग्रीव ने बताया होता है कि मैंने किसी को, सीता जी को ले जाते हुए देखा था। अब विडंबना क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप, और अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो कनेक्ट कीजिएगा। कि सुंदरकांड से पहले जो कांड है उसमें केवल विचार होता है। They just give a thought. Now I will try to connect it with the real life struggle of a normal human being. So what is the learning out of it? कि किष्किंधा कांड, सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों है? क्योंकि इसमें क्या दो चीजों का मिश्रण है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कि किष्किंधा कांड की विडंबना है कि इसमें केवल विचार होता है। अब आप कहेंगे विचार कैसे होता है? They just give a thought, but they don't transform that thought into an action. How we are getting an essence of it? कि जब भगवान श्री राम से सुग्रीव ने वार्तालाप किया, बात की, they had a word and he informed that I have seen someone Ravan was taking away someone. Then Lakshman ji asked him what you did then. तो यहाँ इसका एसेंस ये है कि हमने किसी को ले जाते हुए देखा, हमें ऐसा विचार आया कि कोई किसी का अपहरण करके ले जा रहा है, पर हमने केवल देखा, हमने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, जिसको हम बोलते हैं अमल नहीं किया। तो इसका अर्थ यह है कि विडंबना यह है कि किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, एक्शन नहीं होता। सो एवरीवन इज फाउंडेड बाय थॉट्स, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी एक्शन। अब हम आते हैं लंका कांड पे। लंका कांड का विडंबना यह है कि यहां विचार नहीं होता, केवल कार्य होता है। यह भी एक प्रॉब्लम है। पीपल ओनली डू एक्शन बट दे डोंट गिव अ थॉट टू इट। और बिना विचार के काम करने से सोने की लंका भी जल जाती है। ये लंका कांड का एसेंस है। क्योंकि लंका कांड में जितने भी पात्र हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो विचार नहीं कर रहे, वो केवल काम कर रहे हैं। वो कह रहे विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो। तो एट द एंड द थिंग इज, किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, लंका कांड में केवल कार्य होता है, केवल एक्शन है, नो थॉट। सो एन एक्शन विदाउट अ थॉट that will be destructive, and an thought without an action that won't construct anything. तो एक जो वो थॉट, एक वो पार्ट है जिसमें केवल थॉट है, एक्शन नहीं है, तो वहां कंस्ट्रक्ट नहीं आएगी, क्योंकि आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, आप केवल थॉट्स और थॉट्स पे ही रह जाएंगे। और एक वो कांड है जिसमें केवल एक्शन है, कोई थॉट नहीं है, तो वहां डिस्ट्रक्टिविज्म आएगा। अब बीच में आता है सुंदरकांड, जिसमें विचार भी है और कार्य भी है, एक्शन भी है और थॉट भी है। सो दिस इज व्हाई सुंदरकांड इज बीइंग द प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट aspect and the part of whole Ramayana, because it's a kand which is signifying the
थॉट्स एज वेल एज एक्शन, कि वहां पर विचार भी, अगर विचार शब्द सुंदरकांड जो लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो जानेंगे कि सुंदरकांड के अंदर विचार शब्द कितनी बार आया है। तो ये कोई लिख रहा है इसमें कि सर हिंदी में बोलिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में ही रहूं। मैं अक्सर इंग्लिश में उनके लिए बोलूंगा जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आएगी, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है कि मैं हिंदी में बात करूं। फिर भी अगर किसी को तकलीफ होती है इंग्लिश मतलब मेरी हिंदी में बोलने से, तो कोई बता सकता है। तो जहां तक कि हम बात कर रहे हैं सुंदरकांड की, तो सुंदरकांड में विचित्र बात क्या है कि यहाँ विचार भी है और साथ साथ कार्य भी है। लंका कांड में केवल कार्य है, विचारहीन है, और किष्किंधा कांड में केवल विचार है, कार्य नहीं। तो इसलिए सुंदरकांड को अलग माना गया है। तो इसलिए जो विचार से आगे बढ़े, जो विचार से आगे बढ़े, यानी कि किष्किंधा कांड से आगे बढ़े और कार्य से विचार की ओर आए, दोनों बात ध्यान से सुनिएगा, जो विचार से आगे बढ़े, विचार से आगे मींस किष्किंधा कांड से आगे बढ़े और कार्य से विचार की ओर आए, उनके ही जीवन में सुंदरकांड होगा। तो दिस इज द एसेंस ऑफ सुंदरकांड। आई थिंक एंड आई होप एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई मीन टू कन्वे। आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दिस इज द birth of Sundarkand between these two kands, that is Kishkinda Kand and लंका कांड। तो लंका कांड और किष्किंधा कांड के मध्य है सुंदरकांड, जिसमें विचार और कार्य दोनों किए जा रहे हैं। सो इट्स नाउ अब हम बात करते हैं, सुंदरकांड को कहा जाता है कि ये सबसे प्रिय कांड है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक सुंदरता और संदेश की प्रशंसा की जाती है। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनर ब्यूटी एंड फिजिकल अपीयरेंस। आध्यात्मिक सुंदरता क्या है, इसको अब हम आने वाले 4-5 दिनों में समझेंगे कि सुंदर का अर्थ क्या होता है, सुंदरता में क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे और उसको सुंदरकांड क्यों बोला गया। तो इसकी जो पटकथा है, इसकी जो पूरी कहानी है, उसकी एक बेसिक, अगर हम समझें, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यूं देखा जाए अगर सरफेस लेवल पर या अगर ऊपरी स्तर पर देखा जाए तो ये एक स्टोरी लाइन है जिसमें केवल 3 मुद्दे हैं, 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं कि हनुमान जी लंका की यात्रा करते हैं, सीता माता से उनकी भेंट होती है और लंका जलाई जाती है और वो वापस अपना संदेश लेकर आते हैं भगवान श्री राम के पास। तो अगर इसका हम सरफेस लेवल पर, अगर हम इसका तल रूप से देखें और ऊपरी तल से अगर इसका अध्ययन करें, तो ये बहुत एक सिंपल सी स्टोरी लाइन है जिसमें क्या है कि हनुमान जी यात्रा करते हैं लंका की ओर। लंका में सीता माता को वो ढूंढते हैं। जब वो ढूंढते हैं, इनिशियली वो उनको नहीं मिलते हैं, देन उसके बाद वो उनको प्रयास करते हैं उनको ढूंढने का। वहां उनकी विभीषण जी से मुलाकात होती है, फिर सीता माता को वो मिलते हैं, फिर उनको वो उनका भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाते हैं। उसके पश्चात रावण के जो सैनिक होते हैं वो उनको घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और तत्पश्चात उसके प्रति उनकी पूंछ को जलाया जाता है और उसके पश्चात फिर वो पूरी लंका दहन कर देते हैं और लंका जला देते हैं और अंत में वो पहुंचते हैं भगवान श्री राम के पास संदेश लेके। तो ये पूरी एक पटकथा है, ये पूरी एक स्टोरी लाइन है। अब हम इसको बार बार दोहराने से बेहतर है हम ये समझेंगे कि इसके अंतर्गत कितने गूढ़ रहस्य और कितने गूढ़ अर्थ छिपे हैं जो कि हमको जीवन में जीवन शैली और जीवन का जो दर्शन है उसको समझने में कैसे मदद करता है। और इसमें जितने गूढ़, ये इसको आप इस तरह से समझें कि जब भगवान जब गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिख रहे होंगे, क्योंकि जो बड़े महान संत हैं जिनको मैंने सुना है, पढ़ा है कभी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही इसको लेके कि सुंदरकांड या रामचरितमानस का कोई भी आप कांड उठा के पढ़े, उसको आप एक बच्चे के रूप में पढ़ सकते हैं कहानी की तरह, और उसको एक बुद्धिजीवी, उसको एक इंटेलेक्चुअल, उसको एक फिलोसॉफिकल वे में भी पढ़ सकते हैं। यानी कि उसके जो अर्थ हैं वो सरफेस लेवल पे भी समझ में आते हैं और गूढ़ रहस्य में भी समझ में आते हैं। यानी आपकी डेप्थ तय करेगी कि आप उसको कितना समझ पाते हैं। इसका अर्थ ये है, अगर आप उसको एक कहानी की तरह समझना चाहते हैं तो आप कहानी की तरह भी समझ सकते हैं, पर उसके अंतर आप जाना चाहते हैं और उसके अंदर के रहस्य को, अंदर के शब्दों को, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिटवीन द लाइन्स एंड बिहाइंड द लाइन्स, वो समझना चाहते हैं तो उस स्तर पे भी जा सकते हैं। इसको इस समझदारी से, इसको इस सलीके से लिखा गया है।
कि आम जन भी समझ पाए और गहराई से जो बुद्धिजीवी है वो भी समझ पाए। तो हम इसमें नेक्स्ट पार्ट अब लेके आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी लाइन हमको क्लियर है, थोड़ा बहुत हमको पता है क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो हम इसका डीप एसेंस समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बात आती है कि हनुमान जी का जो यात्रा शुरू होती है। अब हनुमान जी की जब यात्रा शुरू हुई तो हनुमान जी जिस पर्वत पर चढ़ के और जिस पर्वत पर छलांग लगा के वो लंका के लिए यात्रा शुरू करते हैं, उस पर्वत का नाम है सुंदर। तो वो जो सुंदर पर्वत है, ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है जिससे इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, मैं आपको वो श्लोक भी दिखाना चाहूंगा जिसमें मेंशन है। जी, सिंधु तीर एक बूधर सुंदर कौतो कूदी चढ़ेयुता ऊपर। तो समुद्र तीर पर एक सुंदर पर्वत था, यानी समुद्र किनारे पर एक सुंदर पर्वत था, जिसको पार करके, जिस पर चढ़ के और जिसके रिवर्स फोर्स से वे उछल के पवन के फोर्स के थ्रू वो लंका की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक कारण माना जा सकता है जिसकी वजह से इस कांड को सुंदर कांड बोला जाता है। अब ये सरफेस लेवल की बात है कि क्योंकि उस पर्वत का नाम सुंदर था जिसके तीर पर चढ़ के हनुमान जी आगे गए, तो ये एक पहला कारण है जिसकी वजह से इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। मैं उम्मीद करता हूं मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी और जो मैंने समझाया वो इजीली समझ में आया होगा आपको। तो एक सुंदर पर्वत था जिसको चढ़ के श्री हनुमान जी उस लंका की ओर आगे बढ़ते हैं, और जब वो लंका की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये सुंदर पर्वत का उसमें रेफरेंस आता है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा जा सकता है। इसलिए ये एक कारण माना जा सकता है जिसकी वजह से इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया हो। अब इसमें दूसरी जो बात आती है, दूसरी बात ये आती है, जल निधि रघुपति दूत बिचारी तई मानक हो ही श्रमहारी। जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक मैनक पर्वत था, तो मैनक पर्वत को समुद्र ने कहा कि ये श्री राम का दूत है। दूत आप शायद समझते होंगे, मेरे को हिंदी में इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं है। दूत इज ए काइंड ऑफ अ मैसेंजर। सो ये भगवान श्री राम का दूत है। तो समुद्र के ऊपर से जब हनुमान जी जा रहे थे तो समुद्र ने मैनक पर्वत को कहा कि तुम इनकी थकावट को दूर करो। तो थकावट को दूर करना मतलब विश्राम, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दें। अब विश्राम शब्द को अगर आप समझना चाहें तो विश्राम शब्द का गुण है कि इस शब्द में राम शामिल है। तो इसका जो अर्थ निकला कि हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मुझे भगवान श्री राम के कार्य के लिए जाना है, तो मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता, यानी कि मेरे लिए विश्राम कहाँ। अब विश्राम का अर्थ क्या है कि विश्राम में से अगर आप राम निकाल दें, इसका अगर विच्छेद करके आप राम शब्द को निकाल दें तो केवल विष रह जाता है। अब ये बहुत गूढ़ बात है, आप समझ चुके होंगे, जिनको जिस तल पर समझना है वो समझ चुके हो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अभी विश्राम के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरे को भगवान श्री राम का एक कार्य पूर्ण करना है। इससे हम क्या एसेंस ले सकते हैं? इससे हम ये एसेंस ले सकते हैं, द फोकस, द डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति, विल पावर, कि मेरे को अभी विश्राम कहाँ, यानी कि मुझे अभी विश्राम कहाँ। और विश्राम का मैंने आपको अर्थ अभी बताया, विश राम में अगर आप राम को हटा दें तो विष रह जाता है। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हनुमान जी के जीवन को, हनुमान जी के जीवन में, और हनुमान जी ने जिस तरह से सुंदरकांड में यात्रा की, वो एक इंसान को अपने जीवन की यात्रा को फॉलो करने में, इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। आई थिंक काफी हद तक आप लोग समझ पाए होंगे, कनेक्ट कर पाए होंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। अब इसके अतिरिक्त क्या हुआ
कि जब भगवान क्या वो मैसेज लेके आके बड़े समुद्र में आगे गए, तो अब उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस आना शुरू हुए। सबसे पहले चैलेंज आया देवताओं के द्वारा, क्योंकि देवताओं ने हनुमान जी का, जैसे कहते हैं टेस्टिंग द एबिलिटी, इंग्लिश में हम बात करते हैं ना कि टेस्टिंग द एबिलिटी, यानी उनके बल और उनकी बुद्धि को जानने के लिए एक सर्पेंट जिसका नाम था सुरसा, और वो आया एक वर्लपूल के फॉर्म में। आप समझ सकते हैं कि ओशन में वर्लपूल आता है, तो एक सर्पेंट थी सुरसा, जो कि सर्पों की, सांपों की माता है, उनको भेजा गया जस्ट टू टेस्ट हिज एबिलिटीज, जस्ट टू टेस्ट द हनुमान जी एबिलिटी। अब उन्होंने उनका एग्जाम लेने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरे को आपका आहार करना है, यानी मुझे देवताओं ने आपका आहार करने के लिए भेजा है, आपको खाने के लिए भेजा है, उनकी तरफ से मुझे ये भोजन मिला है। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं पहले अपना कार्य करके लौट आऊं, उसके बाद आप मुझे खा सकते हैं। पर इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा, तो वो नहीं माने, और उन्होंने कहा कि जब मैं वहां से वापस आऊंगा तो मैं आप मुझे खा लीजिएगा, पर वो नहीं माने। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो आप मुझे खा लीजिए, मैं आपके मुख में आ जाता हूं और फिर मैं निकल जाऊंगा। तो जब ऐसी बात हुई तो सुरसा ने, सुरसा मीन्स द सर्पेंट, उसने अपने मुख को, अपने मुंह को 4 कोस में फैलाया, इंक्रीजिंग द साइज। नाउ अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने अपना साइज, जो सरपेंट थी, जो सुरसा थी, जो सांप थे, जो सांप का मुख था, वो 4 कोस में बढ़ा। तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। जब उन्होंने अपना दुगना बढ़ा लिया तो उसने 16 योजन, 16 योजन इज अ साइज इन विच यूजुअली वी मेजर द एरिया इन फॉर्म ऑफ योजन्स इन, जब आप पौराणिक कथाएं पढ़ेंगे उसमें योजना, योजन का एक साइज होता है। तो उन्होंने 16 टाइम्स किया। जब उन्होंने 16 टाइम्स किया तो हनुमान जी ने 32 कर दिया। अब यहां तक देखिए, अब यहां तक था डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, यहां तक था बल, बल आपने दिखा दिया, आपने अपना साइज बढ़ा करके दिखा दिया। अब आती है बुद्धि। तो हनुमान जी ने क्या किया, पहले अपना साइज बढ़ाया, कंप्लीट किया। उसने 4 किया तो उन्होंने 8 किया, उसने 16 किया तो हनुमान जी ने 32 टाइम्स कर लिया। अब उनको लगा कि अब आता है, यहां तक बल काम किया। अब उन्होंने क्या किया, अपने साइज को छोटा कर दिया। जैसे ही अपने साइज को छोटा किया और उसके मुख में चले गए और वापस आ गए। Now this is what we call the presence of mind, the conscience, whatever we call it. तो उसके मुख में गए और फिर बाहर निकल आए। Now this is how the presence of mind work. तो यहां उन्होंने अपने बल और बुद्धि दोनों का, अपनी कैपेबिलिटीज का एग्जाम या परीक्षा को पास किया। तो देवताओं द्वारा जो उनका टेस्ट लिया जा रहा था, जो उनकी परीक्षा ली जा रही थी, उस परीक्षा को उन्होंने पास किया। किसके द्वारा, इस प्रसंग के द्वारा। तो यूजुअली जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक फर्स्ट चैलेंज आता है। वो फर्स्ट चैलेंज हो सकता है इज देयर टू टेस्ट आवर कैपेबिलिटी, दैट वेदर वी आर रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट। तो जो पहला परीक्षा आपके जीवन में आती है, जब भी आप किसी यात्रा को शुरू करते हैं, तो शायद वो पहली परीक्षा आपके जीवन की इसलिए आई गई है ताकि आपको, जिसे कहते हैं ना कि पूरा चेक कर लिया जाए कि आप रेडी हैं कि नहीं, कि आप तैयार हैं कि नहीं उस लड़ाई के लिए। तो वो पहला चैलेंज वहां आता है। तो जहां बल और बुद्धि दोनों का उन्होंने प्रदर्शन किया, और इसके बाद उनको ये आशीर्वाद मिला, उनको ये कहा गया कि तुम राम जी के कार्य को अवश्य करोगे क्योंकि तुम बल और बुद्धि दोनों से परिपूर्ण। आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रसंग आता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रीचिंग टूवर्ड्स द लंका। तो वहां हनुमान जी लंका के पास पहुंचते हैं और बहुत सारे फूल फल। बस इसमें एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, जो वाल्मीकि रामायण में जिस पर ध्यान दिया गया है, वो मैं आपको एक बार मेंशन और कर देता हूं कि हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि और राम के प्रति जो अद्वितीय भक्ति थी, वो हनुमान जी को माना गया। पर हनुमान जी के बारे में एक बात और थी यहाँ पे, कि हनुमान जी जिस तरह से उस तरफ पार करके गए, वेयर द वर्ड इज कॉल्ड स्वयं टू लंका, तो उसमें एक है कि द स्विमिंग स्किल्स, दैट इज द बटरफ्लाई स्ट्रोक्स,
क्योंकि ये उसमें मेंशन किया हुआ है। जब आप वाल्मीकि रामायण का कोई श्लोक पढ़ते हैं तो आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी देती थी मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हुए हों। उस समय महाकपि हनुमान ऐसे प्रतीत होते थे मानो तारामंगलों सहित महासागर पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हो। नाउ दिस इज हाउ, अब इसको आप थोड़ा समझिएगा। ये अगर इसका हम एसेंस पे जाएं, इसको बहुत पर्टिकुलरली बेसिक सरफेस लेवल पे समझें, सो इट्स लाइक यूजिंग अ बटरफ्लाई स्ट्रोक। आप लोगों में से जिन लोगों ने स्विमिंग को देखा है या स्विमिंग की है वो समझते होंगे कि बटरफ्लाई स्ट्रोक्स क्या होते हैं, कि दोनों हाथों से हवा को पार करना। ये वाल्मीकि रामायण से मैंने निकाला है एक्सेप्ट, ताकि मैं आपको बता सकूं कि हनुमान जी के जो स्विमिंग स्किल्स हैं वो क्या हैं, इसको उस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए वापस हम आते हैं उसी पे जो हम एसेंस पे जा रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त जब वो लंका के पास पहुंचते हैं, लंका को देखते हैं और देख के विभोर होते हैं। अब इस पे एक थोड़ी सी बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि वैसे तो इसके एसेंस में हम डीप में बहुत आगे भी जाएंगे, भी तो बहुत सारी चीजें हमको डिस्कस भी करनी है। जब वो लंका के करीब पहुंचते हैं और लंका को देखते हैं तो लंका वाकई में बहुत, क्योंकि सोने की लंका है तो अट्रैक्ट करती है, आकृष्टि होती है, जिसको हम बोलते हैं आकृष्टि हिंदी में। तो क्या हनुमान जी उसकी आकृष्टि से प्रभावित होते हैं? नहीं। अब ये जो गुण है हनुमान जी का, इस गुण को बोलते हैं वैराग्य। कि हनुमान जी ने लंका देखी, सोने की लंका को देखा, और जब उन्होंने सोने की लंका को देखा तो उन्होंने पाया कि ये है तो बहुत सुंदर, लंका बहुत सुंदर है, तो क्या इस वजह से इसका नाम सुंदरकांड हो गया? नहीं। पर लंका सुंदर है पर वो उससे आकृष्ट नहीं हुए, यानी कि उनके अंदर वैराग्य का तत्व था। मैं आपको जब एक सेशन लूंगा आपका 2 या 3 दिन बाद, उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि 3 गुण क्या होने चाहिए जो कि व्यक्ति को जीवन को सुंदरकांड बनाने में सहायक करती हैं। वो हम जब डिस्कस करेंगे डिटेल में तब पढ़ेंगे। तो यहाँ आकृष्टि जो है, यानी कि आपको कोई चीज बहुत लंबे समय तक खींच के नहीं रख सकती, बहुत लंबे समय तक अपने पास रख नहीं सकती, अपने ऊपर निर्भर नहीं करवा सकती, वो गुण है हनुमान जी। हनुमान जी में विश्वास भी है, भक्ति भी है, और वैराग्य भी है, और विचार भी है। मैं इन तीनों को डिटेल में आपसे एक्सप्लेन करूंगा किसी तीसरे या चौथे दिन पर। बट यहां जो मेन भाग है वो क्या है कि लंका के भोग से आकृष्टि नहीं कर पाते और उसे जला देते हैं। वो जला इसीलिए पाते हैं क्योंकि उनको लंका से आकृष्टि नहीं होती। ही इज नॉट डिपेंडेंट, ही इज नॉट अटैच टू इट। और इसी को बोलते हैं वैराग्यगामी होना। क्योंकि हनुमान जी ने लंका को तो देखा पर लंका को वैराग्य की दृष्टि से देखा, न कि त्याग की दृष्टि से। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी और डिटेल कर देता हूं, क्योंकि हम डीप एसेंस पे अब डिस्कस कर रहे हैं कि गिरी पर चढ़ी लंका तही देखी। गिरी माने पर्वत, किसी पर्वत पर चढ़ के उन्होंने लंका को ऊपर से देखा। तो जब लंका को जिस नजर से देखा, वो जो नजर थी, वो जो दृष्टि थी, वो दृष्टि थी वैराग्य में। अब वैराग्य में और त्याग में क्या अंतर है, थोड़ा हम इसको भी समझ लेते हैं हमारी हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए। देखिए, अगर मैंने किसी चीज को अपने हाथ से छोड़ दिया, फिजिकली, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने किसी चीज को अपने हाथ से छोड़ दिया, तज दिया, तज देना मतलब त्याग देना, वो है त्याग। सिंपली कि मैंने, मान लीजिए मेरे हाथ में मोबाइल फोन था, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा तज ही मोबाइल फोन है। तो अगर मान लीजिए मेरे हाथ में मोबाइल फोन था और मैंने उस मोबाइल फोन को अपने हाथ से दूर करके दूर किसी टेबल पर रख दिया और ये सोच लिया कि अब मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ये त्याग है, ये तज है। यानी कि मेरे को उस चीज से अपने हाथ को दूर करना पड़ा, तभी मैं इस चीज से दूर हो पाऊंगा, ये त्याग है। वैराग्य क्या है कि मैं इस चीज को अपने हाथ से नहीं, अपने मन से दूर कर पाऊंगा। तो हाथ से छोड़ना है त्याग, और मन से छोड़ना है वैराग्य। अब वो मोबाइल आपके हाथ में हो चाहे ना हो, आपको उससे मतलब ही नहीं। वो आपकी जेब में भी रखा रहे तब भी आप नहीं देखते। हम क्या करते हैं कि मैं मोबाइल को से बचने के लिए क्या करूंगा कि मोबाइल को दूर रख दूंगा, तो ये त्याग हो गया। मन तो आपका फिर भी कर रहा है, पर आपने उसको अपनी एक्सेसिबिलिटी से दूर कर दिया, ये त्याग है। कि आप उसको देखोगे नहीं तो आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि आपका मन तो करता है। वैराग्य इज अ हायर डिग्री, वो एक उच्चतम स्तर है। वहां
आपने किसी चीज को अपने हाथ से नहीं, अपने मन से ही छोड़ दिया। अब भले ही वो चीज आपको दिखे या ना दिखे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं द स्ट्रॉन्गर वंस आर द वंस हु हैव प्रैक्टिसिंग वैराग्य। क्योंकि आप जब किसी चीज को नहीं देखोगे तो शायद हो सकता है आपका उस पर ध्यान ना जाए। वैराग्य कहता है कि आपका उस पर ध्यान चला भी जाए तो भी आपका मन नहीं करेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन त्याग एंड वैराग्य। इसको आप उस तरह पे भी समझ लेते हैं कि इसको आप गलत, मतलब इसका आप गलत अंतःकरण ना करिएगा। इसको आप इस तरह से सभी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि अपना घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं ये सब देखूंगा और इसी में उलझा रहूंगा तो मैं कभी भगवान की भक्ति कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं मोह में फंसा रहूंगा, माया में फंसा रहूंगा। ये त्याग है कि उसने अपने हाथ से सब चीजों को छोड़ दिया और वो जंगल में चला गया। वैराग्य क्या है कि वो उसी घर में रह रहा है, वो उसी गाड़ी में घूम रहा है, वो उन्हीं लोगों में घूमता है, वो सब रिश्ते भी निभाता है, पर अंदर से मन उसका खाली है, अंदर से मन उसका कहीं और लगा है। ये वैराग्य है। तो जंगल में जाना वो त्याग है, और घर में रहते हुए, जिसको हम कहते हैं गृहस्थ संत, घर में रहते हुए संत हो जाना, वो वैराग्य है। आई थिंक मेरी बात कुछ हद तक आप लोगों को कुछ समझ आई होगी या क्लियर हुई होगी, और मैं ऑडिबल रहा हूंगा आप काफी लोगों को। तो त्याग और वैराग्य के बीच का जो मध्य अंतर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हनुमान जी ने लंका को त्याग की नजर से नहीं, वैराग्य की नजर से देखा। अगर वो त्याग की नजर से देखते तो वो लंका की तरफ जाते ही नहीं, पर उन्होंने लंका को वैराग्य की नजर से देखा कि मैं यहाँ रहूं, मैं यहाँ जा रहा हूं, पर मेरा मन इसमें अटका हुआ नहीं। तो ये वही वाली बात है कि आप जंगल में तो नहीं है, आप रह तो घर में ही रहे हैं, आप नॉर्मल एक इंसान के सारे काम कर रहे हैं, आप सन्यासी नहीं हुए, आप गृहस्थ संत हो गए कि आप घर में रहते हुए भी, जुड़े हुए भी अलग हैं। इसको हम कहते हैं द्वैत हो जाना। एक वो है जो जुड़ता है, एक कोई और है जो किसी से जुड़ता नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी विचार के तल पर। अगर यहां तक कि किसी भी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब पर्वत पर चढ़े, लंका देखी, लंका देखने के बाद वो कहते हैं कहा नहीं जाता, चारों ओर समुद्र था, सोने की लंका थी, चारों दीवार पे प्रकाश था, वो सारी बातें हुई। और लंका चारों तरफ सोने की थी, सोने का परकोटा था, उसमें बहुत सुंदर सुंदर घर थे, चौराहे थे, बाजार थे, सुंदर मार्ग थे, गलियां थी। मीन्स इट्स अ परफेक्टली सेटल्ड मल्टीप्लेक्स सोसाइटी जिसमें सब कुछ है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब इसके बाद तीसरा चैलेंज क्या आता है? तो जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो एक श्लोक है इसमें कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर कौ पैसार। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। डीप एसेंस पे हम जाते हैं कि नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि मैं अत्यंत ही छोटा रूप धरूं और रात के समय प्रवेश करूं, ताकि मेरी जो प्रेजेंस है वो किसी के नोटिस में नहीं आए, वो किसी को दिखे नहीं। ऑब्वियसली बात है कि अगर वो दूत बन के जा रहे हैं, वो अपना मैसेज देने जा रहे हैं, तो वो इस प्रकार वहां तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि किसी के भी नजर में ना आए, किसी को भी पहचान में ना आए। और मैंने यहाँ विचार पर हाईलाइट किया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सुंदरकांड में विचार भी है और कार्य भी है। अब हनुमान जी ने विचार किया कि मैं लघु रूप, लघु रूप मतलब छोटा रूप, बहुत ही छोटा रूप। अब इस एसेंस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एट द अंत में वो सीता माता से मिलना चाह रहे हैं, उनको भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। सीता जी जो हैं उनको भक्ति माता माना गया है, इसका भी मैं डिस्कशन करूंगा आने वाले 2-3 सेशंस में कि उनको भक्ति माना गया है, वो भक्ति की मूर्त हैं। भक्ति का इंग्लिश में अर्थ है डिवोशन। शी इज द साइन ऑफ डिवोशन। हाउ एंड व्हेन एंड व्हाई वेयर वो हम नेक्स्ट उसमें सेशंस में डिस्कस कर लेंगे। अभी इसका एसेंस समझिएगा। तो जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनका हनुमान जी को किससे किससे भेंट होनी है? सीता जी से। यानी वो सीता जी को ढूंढते हुए वहां पहुंचे हैं और वो उन्हीं की ही तलाश में है।
अब उनको पाने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि बहु कपि मन कीन विचार अति लग रूप धरऊ निसी नगर कहूं पैसार। अब इसका अर्थ समझिएगा ध्यान से। देखिए मैंने कहा मैं आपको डीप तक लेके जाऊंगा कि सीता माता से उनको मिलना है और उनको पाने के लिए यानी कि भक्ति को पाने के लिए आपको अति लघु रूप धरऊ यानी अत्यंत ही छोटा रूप धारण करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भक्ति को प्राप्त करना दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। इसको आप इस तरह से समझिए। अगर आप बहुत बड़े रूप से जाएंगे तो आप प्रदर्शित होंगे, लोगों को दिखेंगे। तो भक्ति को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो जिसे कहते हैं सटल वे में, बहुत ही छोटा होके और इस प्रकार कि आप कहीं प्रदर्शित ना हो। तो इसलिए कहा जाता है कि दर्शन की आवश्यकता है, प्रदर्शन की नहीं। तो ये इसका एसेंस है कि जब आप भक्ति को प्राप्त करना चाहें, जब आप भक्ति मार्ग पे हो, हमारे वेदांत में 3 प्रकार के मार्ग कहे गए। एक चौथा मार्ग भी है, उसको मैं आगे वाले सेशंस में आपसे डिस्कस करूंगा कि ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना या लिबरेट होना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिबरेशन, गेटिंग आउट ऑफ दिस शेकल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये सारे जितने भी हैं इनके लिए 3 मार्ग प्रशस्त किए गए। एक है भक्ति मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग और एक है कर्म मार्ग, जिसको हम हठ योग भी कहते हैं। तो भक्ति मार्ग को फिर किसी ने आसान माना गया है क्योंकि भक्ति मार्ग में समर्पण है। ज्ञान मार्ग में कुछ हद तक एक समस्या है कि ज्ञान मार्ग में, क्योंकि मैंने कुछ बड़े महान संतों को सुना है, वो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान मार्ग में कहीं ना कहीं आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो भी एक रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का, लिबरेट होने का। और ये जो लिबरेशन है, जो मोक्ष है, ये क्या है? ये केवल हमारी एक जागृति है। ये हमारी एक जागृति है जो हमारे सोए हुए मन को जगा रही है, कि जो हमको मैं और हम से अलग करती है, जो ये बताती है कि मैं हूं कौन और मैं क्या कर रहा हूं। खैर वो बहुत डीप हो जाएगा। तो इसका एसेंस ये है कि भक्ति या सीता माता को प्राप्त करने के लिए या मिलने के लिए आपको दर्शन की जरूरत है, प्रदर्शन के लिए। इसलिए वो बहुत छोटा रूप धारण करते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? मशक समान रूप कपिधरी। मशक माने मच्छर, तो उन्होंने मच्छर के तरह रूप अपना धारण किया और वो लंका में आगे चले। इसके बाद अगला चैलेंज, अब ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उनको सबसे पहला जो चैलेंज आया वो आया लंकिनी का। लंकिनी एक राक्षसनी थी और वह राक्षसनी उनका रास्ता रोक के खड़ी हो गई। तो वो कहते हैं मशक समान रूप कपिधरी लंके ही चलियो सुमरी नरहरी। लंका की ओर आगे बढ़े। जैसे ही वो आगे बढ़े तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी और वह बोलती है कि मेरा निरादार करके बिना मुझसे पूछे आप कहाँ जा रहे हैं। सो कह चले सी मोहिन इंद्री, यानी कि मुझसे बिना बताए, मुझको बिना देखे, मुझसे बिना पूछे आप इस प्रांगण में और इस प्रांगण में, इस जगह पर आप आए कैसे? यानी ये भी, इसमें भी कहीं ना कहीं एक राक्षसनी का एक अहंकारी भाव है। मैं आपको एक राक्षसनी के बारे में और राक्षस के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर लोगों ने बहुत गलत अर्थ भी निकाला है। अभी मैं बेसिक्स से आपको समझा देता हूँ कि राक्षस जो हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, राक्षस को गलत उपमान दे दिया गया है कि दे आर डेमन्स। नो, दे आर नॉट डेमन्स। राक्षस के 3 रूप हैं जो वाल्मीकि रामायण में भी स्थापित हैं और आपको और भी किसी ग्रंथ में मिल जाएगा। राक्षस विरूपा है, सुरूपा है और बहुरूपा है। विरूपा मीन्स हिडियस, सुरूपा मीन्स हैंडसम और बहुरूपा मीन्स मल्टी। तो राक्षस कई रूपों में है, दे कम इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो जो हमने राक्षस की एक इमेज बनाई हुई है कि राक्षस मीन्स डेमन्स, नो, दे आर नॉट डेमन्स। दे आर विरूपा, सुरूपा एंड बहुरूपा, हिडियस, हैंडसम एंड मल्टी। तो खैर, अब जब उनका रास्ता रोका, उनको लंकिनी ने उनके रास्ते पे खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे बिना पूछे नजरें चुरा के कहां जा रहे हो। तो अब हनुमान जी रुक गए कि ठीक है। उन्होंने कहा कि जहां तक जितने चोर हैं वो सब मेरा आहार है। लंकिनी ने हनुमान जी को चेतावनी दी कि तुमने मेरा भेद नहीं जाना, तुमने मुझे जाना ही नहीं है कि मैं कौन हूं और तुम यहाँ पे आए चले जा रहे हैं। अब हनुमान जी ने क्या किया, इसको आप बहुत गहराई से समझिएगा। एक्चुअली शी चैलेंज्ड, उन्होंने हनुमान जी को चैलेंज किया। उन्होंने हनुमान जी को
बहुत ही साधारण और बहुत ही मामूली समझा। हनुमान जी ने क्या इसका उत्तर दिया, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ जो चैलेंज है, ये लाइफ की तरह आप इसको लीजिए कि हमारी महानता को जब कोई मजबूरी समझे, हमारी विनम्रता को कायरता समझे, हमारी सरलता को कोई बुद्धूपन समझे, तो समाधान है सुंदरकांड में। अब देखिए हनुमान जी ने यहाँ क्या किया, मैं रिपीट करता हूं कि हमारी महानता को जब कोई मजबूरी समझे, विनम्रता, क्योंकि हनुमान जी मशक समान थे, मच्छर के समान थे, तो लंकिनी को लगा कि ये इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की मेरे होते हुए। इसमें अहंकार का भाव है, राक्षस में अहंकार का भाव होता है कि मेरे को बिना बताए आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे को आपने देखा नहीं, मेरे को आपने पूछा नहीं, तो यहाँ अहंकार का भाव आ गया। तो हमारी महानता को जब कोई मजबूरी समझे, विनम्रता को कायरता समझे, सरलता को कोई बुद्धूपन समझे, तो समाधान है सुंदरकांड। और वो समाधान क्या है, अगली ही पंक्ति है, मुठि का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। मुठि का एक महाकपि हनि, यानी कि मुठिका क्या, यानी पांचों उंगलियों को मिला के जब बनता है उसे मुक्का बोलते हैं ना, मुठिका, यानी कि जब हम पांचों उंगलियों को मिला देते हैं तो बनती है मुट्ठी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब आप महानता को मजबूरी, विनम्रता को कायरता और सरलता को बुद्धूपन समझें, तो आपको क्या करना चाहिए, समाधान क्या है, मुठिका है। देखिए प्रॉब्लम और साथ के साथ सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम थी, इसके साथ साथ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ये मुठिका। मुठिका मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ योर 5 फिंगर्स जॉइंट ऑल टुगेदर। तो समाधान है कि जब कभी ऐसी समस्या समाज में आए तो सारे समाज को इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है कि जब भी कोई चैलेंज आए तो चैलेंज का सॉल्यूशन क्या है कि पांचों उंगलियां मिल जाएं और साथ में खड़ी हो जाएं। तो सारे समाज को इकट्ठा हो जाना ही ये मुठिका है। तो इसी पे मैं वैसे तो इस पे और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, पर क्योंकि अब समय की सीमा लांग रहे हैं हम, तो इसमें एक छोटी सी बात आपको मैं कहूंगा, कल फिर इस पे हम डिस्कस करेंगे कि बुरे लोग जो होते हैं वो हमेशा संगठित रहते हैं पर प्रतिभावान नहीं। इंटेलेक्चुअल्स आर नेवर एंड कैन नेवर सिट टुगेदर। ये समझदार व्यक्ति और प्रतिभावान व्यक्ति कभी भी साथ में नहीं मिलेंगे। जैसे आप 4 शराबियों को, 4 नशेड़ियों को, 4 जुआरियों को अलग नहीं कर सकते, और 4 विद्वानों को आप एक जगह रख नहीं सकते। आप 4 इंटेलिजेंट पीपल, 4 इंटेलेक्चुअल से कहिए कि आप एक जगह बैठ जाए, वो नहीं बैठ पाएंगे। अब इसका कारण क्या है कि जो 4 शराबी हैं, जो 4 जुआरी हैं, या जो गलत काम कर रहे हैं, उनको जो बुराइयां मिलती हैं वो उसको मिल बांट कर भोगना चाहते हैं कि बुराई एक को ना मिले, सबको मिले। और विद्वान को क्या है कि श्रेय मिलता है, और श्रेय इंसान अकेला रहना चाहता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो विद्वान होंगे वो कभी एक साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको श्रेय अलग अलग चाहिए। और जो बदमाश होंगे या बुरे लोग होंगे वो संगठित रहेंगे, ये उनकी ताकत है। तो अगर प्रतिभावान लोग, इंटेलेक्चुअल पीपल आर सिटिंग टुगेदर, देन वही मुठिका बन गई। तो ये उसमें एसेंस दिया है। लास्ट में मैं एक लाइन से इस बात को खत्म करूंगा और फिर मैं आपके प्रश्न उत्तरों के लिए तैयार रहूंगा। मैं रीड करना चाहूंगा कि वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में, जब तक होती है शांति हृदय में, तब तक हम होते हैं केवल भारत, और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है, हो जाते हैं हम ही महाभारत। धन्यवाद। द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस नाउ। मोना शाह जी ने कुछ हैंड रेस किया है, प्लीज मैम आप टेक्स्ट में या अपना माइक अनम्यूट करके बोलें प्लीज। Good evening, sir. Am I audible? यस मैम, यू ऑडिबल प्लीज। पहला धन्यवाद ग्लोबल गोकुल यूनिवर्सिटी का, जो इतना सुंदर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है। दूसरा Thank सर you, ma'am. आपको, Thank you, सुंदरकांड हर सैटरडे को मेरा नियम है कि जी। अगर मैं तो एलेक्सा बहुत सालों से सुनती आ रही हूँ, बचपन से। जी जी वो बचपन,   काम भी करती,                                                                                                    जी काम भी करती
एक बात ये जी अ, मैम, आपका वॉइस बीच करेंगे। बीच में कट रहा है, आप अगर यस आई आपका एम वॉइस ट्राइंग बीच माय में, हार्डेस्ट यस यस यस। के बारे में ये भी कहा, अंजनी माँ इनको सुंदरकांड कहा जाता है। जी, तो क्या इस मैंने पढ़ा था, उसमें कहाँ तक जी सच्चाई है कि अंजुमा इनको सुंदर बुलाती थी, निकनेम था इनका हनुमान जी का, और इस वश आ जाता आ, से आप ये मैं बातें आपको जितना, बहुत ही खूबसूरत एक्चुअली with the entire forum की को प्ले देखा है, एक ड्रामा है। जी सर। जी मैम, एक्चुअली आपका वॉइस बीच बीच, हाँ हेलो। आपका वॉइस बीच बीच में कट रहा था, तो मैं जितना भी समझ पाया, हाँ तो यस मैं यस बस यस ये यस। यही बात करना चाहती हूँ कि मैंने रिसेंटली लास्ट जी सैटरडे को हमारे राम नाम का एक प्ले देखा है, और अगर ये फोरम वो जी है जी जहाँ पे रामायण का कॉमन डिस्कशन हो रहा है, तो इस आपकी परमिशन के जी जी साथ मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि जिनके भी सिटी में आए जी ये प्ले जरूर देखें। जी आशुतोष राणा और जरूर। राहुल बूचर साहब का है, बहुत ही सुंदर प्ले है, जी और जी बहुत ही ज्यादा बातें जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, बट थैंक यू सर, बस इतना ही कहना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर इनिशिएटिंग द डिस्कशन, और एंड में जो आपने बोला उसके लिए योर तो वेलकम, बहुत ज्यादा धन्यवाद। वेलकम 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 मैम, एंड आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चन। आप मेरा आपका अपना क्वेश्चन लिख के भेजिएगा, मैं उसको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा आपको अगली बार जरूर। जी थैंक यू सो मच। एनी मोर क्वेश्चंस, एनी फीडबैक फ्रॉम एनीवन? Yes, ma'am. Hanuman was also called Sundar by Anjana Mata. Is that also reason for the name? Yes, ma'am. ये भी एक उसमें एक्सेप्ट आता है कि अंजनी माता जी उनको सुंदर से उद्बोधित करती थी, और इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। तो एक ये भी कारण है, सुंदर पर्वत भी एक कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं जो हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों। और सुंदरता को बहुत ही गहराई से समझाया गया है सुंदरकांड में, कि सुंदरता एक वो सुंदरता है जो हमें बहिरूप दिखती है, सुंदरता एक वो सुंदरता है जो हमको अंतरंग दिखनी चाहिए। तो उसके बारे में हम आगे वाले सेशंस में भी डिस्कस करते रहेंगे, और मैं रिपीट करूंगा इन्हीं चीजों को बार बार, ताकि आपको और बेहतर समझ डेवलप हो पाए। Sir, can I ask a question? यस मैम, प्लीज प्लीज। Sir, आपने if I heard it properly, तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। आपने कहा जी कि हनुमान जी का एक विवरण आता है जहाँ पे आपने बटरफ्लाई मोशन का जी बताया जी जी कि जी उनका जो लैब था वो जी बटरफ्लाई लैब लग रहा था, और वैसा जी लग रहा था कि आसमान को भी ले जाना चाहते हैं और समुद्र को भी ले जाना चाहते हैं। जी तो जी। हम इसमें क्या समझे? Was he really the one who could fly, or he really went through swimming? How was it? Yes, ma'am. Actually, yeah, actually, it signifies that he has both the capabilities and skills to reach and to manage that path. क्योंकि एग्जैक्ट क्लैरिटी तो उसमें भी नहीं है कि वो किस वो समुद्र के अंदर गए कि नहीं गए, पर ये बताया जाता है कि इन दोनों स्किल्स के थ्रू उस चीज को, उस जगह को पार किया जा सकता था। क्योंकि उसमें एक जगह ये भी रहा जाता है जहाँ कहते हैं पवन तनय। पवन तनय मीन्स के विद द फोर्स ऑफ द विंड। So if someone is working with the force of the wind, that means the wind is also accompanying with that particular type of skills which are required to cross that particular path. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.
I think we have 2 more raised hands, sir. Yes, sir. I think Dr. Preeti ji raised the hand. Am I audible, sir? Yes, ma'am, please. Sir, first of all, a big thank you to you and the team for organizing this 6 days program, sir. और सर सुंदरकांड जो एक कांड जो इस तरीके से रामायण में है और बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और ये कहा भी जाता है कि कोई भी विपत्ति हो तो अगर आप सुंदरकांड पढ़ते हैं 40 डेज या जैसे भी, तो बहुत उससे फर्क पड़ता है। बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट सर, मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या आगे आने वाले दिनों में हम इसको कुछ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग या हनुमान जी का जो लीडरशिप स्टाइल है, कैसे वो चेंज को मैनेज करते थे, और क्या हम इन सब पे भी डिस्कशन करेंगे सर? कुछ हम रिलेट करेंगे उस पे? जी बिल्कुल, यही एक्चुअल में यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उसके एसेंस को यूज कर पाए डेली लाइफ स्ट्रगल्स और मैनेजमेंट में भी। क्योंकि आपको मैंने जैसा यहाँ बताया कि उन्होंने पहले बड़ा रूप धारण किया, फिर छोटा रूप धारण किया, तो सिग्निफाइंग दैट कि हाउ टू मैनेज बिग प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू मैनेज द माइक्रो प्रॉब्लम्स। तो ये लगता है कि प्रॉब्लम एक नहीं होती, प्रॉब्लम अलग होती, तो सॉल्यूशन भी अलग अलग होते हैं। तो कम्पीट किस लेवल पे करना है, जिसको आप मार्केट से भी जोड़ सकते हैं कि कई बार कंपटीशन प्राइस पे होता है, फिर प्राइस पर होते होते कंपटीशन चला जाता है ब्रांडिंग पे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो पहले वो कम्पीट कर रहे थे साइज पे कि उनका साइज 16 हुआ, उसने पहले 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ। देन ही कम टू नो कि नहीं, अब ये काम इससे नहीं चलेगा, अब वापस नीचे आ जाओ। तो ये मिक्स है, मिक्स मेथड इसको बोलते हैं आप। तो सर, वुड यू सजेस्ट कि अगर हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, वुड यू एडवाइज वी कुड कीप अ सुंदरकांड विद अस, ताकि हम रिलेट कर सकें, पढ़ सकें उसको साथ साथ? हाँ, that is for your choice। वैसे तो मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उसके साथ साथ मैं अर्थ भी सहित एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने आपको स्क्रीन भी शेयर किया था, आई थिंक, जब मैं बीच में बोला था। तो वो आप अपने सुविधा के लिए जिस अनुसार आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, ताकि समझेंगे तो समझने के तल पे आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फर्दर सेशन सर। थैंक यू। श्योर मैम, थैंक यू सो मच। सर, कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? यस मैम, प्लीज। सर, मैंने थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट ज्वाइन किया था जी। मैं आप जानना चाहूंगी कि आपने सुंदर का तो एक्सप्लेन किया, तो सुंदर एक घाट का नाम था जिसको पार करके वो लंका की तरफ गए। जी। और के बारे में ये जो कांड शब्द इसके साथ जो इसकी जो संधि है, जी कांड शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है? डज इट मीन एपिसोड? इसका क्या अर्थ है यहाँ पे? देखिए, मैं इसका अभी आपको केवल सरफेस लेवल का आंसर दे पाऊंगा, गहराई में तो इसका मैं अभी इतना नहीं समझाऊं इसको। अगर मैं आपको दे पाया इसका आंसर आने वाले 6 दिनों में, पर हाँ, सरफेस लेवल पर अगर समझें तो कांड मीन्स एन एपिसोड, बिकॉज इट्स एन एपिक विच हैपन 12 बहुत लाखों हजारों वर्षों पहले की एक उसमें एपिक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ एन एपिसोड। अब उसका और गहरा गूढ़ रहस्य क्या है और अर्थ क्या है, वो मैं आपको आने वाले 4-5 दिन में समझा पाऊंगा। बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद। I think there is one more hand which has been raised, Dr. Anju Singh ji. सर, आपको बहुत बहुत साधुवाद। प्रणाम मैम, धन्यवाद। I am from Sri JJT University, sitting in the rural area of झुंझुनू। अरे वाह। तो मैं एक बहुत प्रैक्टिकल और शायद सबको फनी भी लगे कि हम जैसे नॉर्थ से हैं, जी जी, मैं भी नॉर्थ से हूँ मैम। बचपन में ना रामायण का एक सीजन आता था, तो रामायण 24 घंटे में खत्म करनी होती थी। जी, और इतना फास्ट पढ़ते थे और ग्रुप में बैठते थे, तो शब्द दर शब्द पढ़ते चले जाते थे। ठीक है, सुंदरकांड कब आया निकल गया पता ही नहीं चला। फिर थोड़े बड़े हुए तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा कि जब भी कोई कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरा हनुमत बलबीरा, कि रोड पे अंधेरा हो, घर में अकेले हो, एग्जाम हो या कुछ हो, बस खाली हनुमान चालीसा पढ़ लो। बट इट यूज्ड टू हेल्प ए लॉट।
पर आज आपने जो बताया है ना विचार शब्द, जी जी जी, सुंदरकांड में, really it makes a difference in my thoughts and my thinking. और like being I am always with the researchers, तो हम लोगों ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद किष्किंधा में आपका। खाली विचार है और जी लंका में बिना विचार के काम है तो सब नष्ट हो जी जाता है। जी और जी अभी now I am while listening you I was recollecting the incidents, तो जी वाकई जी। it is true. So really आपको कितनी बार थैंक यू कहें, नहीं नहीं साधुवाद मैम, है। आप Really it's a भी, great मैं केवल experience. मैं केवल मीडियम हूँ मैम, मैंने भी कहीं से सीखा पढ़ा ही है, तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम नया थॉट। और अभी आप समझ लीजिए, अभी हमारे जेजीटी आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट वलेचा मैम जी जी to keep a compulsory mandatory session for our staff. Here we have nearly 350 staff in Okay, our okay, campus. So okay. we will keep a one Absolutely, period for absolutely, them. absolutely, absolutely. Okay, so thank you very Ready to much. help you and ready to cover, discuss with you anytime. Sure, Thank sure, you. sir. Sure, sir. Thank you, ma'am. All right. I think that takes care of all the questions for today. Yes, sir. So, Suman sir, if there are no other questions, we can move towards closing the session for today. That's fine. Absolutely, sir. We can. Perfect. Before we close, however, sir, I think I'm sure you have seen the chat box and the comments that you've received. So it's a very wonderful beginning, which I'm sure that we have done. All the discussions and all the questions have provided us with this space for this beautiful insights that we're drawing from your insights into the topic at hand. So thank you so much for that, first of all. And with that, we move towards closing the session for today. We'll meet again tomorrow. Thank you and good night, sirs. Thank you so much, ma'am. We'll meet again tomorrow at the same time. The link will remain the same. And we will have yet another topic, yet another area on the same topic with Suman sir guiding us in the same as well. So great. Thank you so much, everyone, for joining us. And we'll meet tomorrow. Have a great day. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. हेलो सर, नमस्ते। हेलो सर, क्षमा करिए, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है, मैं संस्कृत का ही छात्र हूँ। अभी बचपन से अभी तक संस्कृत में ही अध्ययन हुआ है मेरा। तो थोड़ा सा इंग्लिश के साथ यदि हिंदी, संस्कृत में तो संभव नहीं है कि सभी संस्कृत के नहीं है, लेकिन हिंदी में थोड़ा अधिक हो जाए तो सर मैं अभी जुड़ा हूँ जब से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश में। जो आपने जो ऑन स्क्रीन जो बताया तो वो तो समझ गया, पर इंग्लिश नहीं आ पाती सर मुझे। बाकी मेरी पीएचडी रामायण महाभारत में ही है, मेरी पूरी पीएचडी संस्कृत में ही है। और तो यदि थोड़ा इंग्लिश की वजह हिंदी में होगा तो मैं भी अपना सुन भी पाऊंगा और मेरे पास जो है वो भी आपको पाथे दे पाऊंगा। जी, मैं सुमन सर को ये आपका मैसेज डेफिनेटली कन्वे कर दूंगा। तो हम थोड़ा सा इसको, सुमन सर आई थिंक है हमारे साथ यहाँ पे। मैं इसका ध्यान, तो सुमन सर आप आई थिंक इसको बिल्कुल मैं इसका ध्यान, जी, धन्यवाद। थैंक यू।